योर टॉपिक इज पोल्यूशन. ओके, आई ऑलरेडी मैंने आपको ये पहले भी एक बार पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी. ठीक है, नाउ आई अगेन दिस इज द रिवीजन फॉर यू. एनवायरमेंटल पोल्यूशन, दैट इज द चैप्टर 9. ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स द पोल्यूशन which is in the environment, harmful gases at the environment, that is known as the environmental pollution. Environmental pollution is a problem both in development and developing countries. ठीक है, जो भी environment की pollution की जो problems हैं, चाहे वो developed countries हो and developing countries हो, both are facing the same problem for the environmental pollution. ठीक है, factors such as pollution growth and the urbanization. ठीक है, it increases the pollution at the atmosphere. Different urbanization process, it is to be increasing the harmful gases at the atmosphere, so the pollution is to be increases day by day. ठीक है, for example, different types of pollutions are there. Waste from the exploitation going straight into the environment, for example air, water, land, and the seriously damaging the natural processes. Environmental pollution is a continuation of the physical and biological components of the earth. ठीक है, atmosphere system to such an extent that the normal environmental process are adversely affected. ठीक है, जो environmental pollution it is to be the adversely affected, different components are adversely affected. Definition of environmental pollution are, ठीक है, these are some of the definition of environmental pollution. First definition is pollution is the introduction of contaminants into the environment, causes harm or discomfort to the human or others. Living organism damage the environment and which can comes in the form of substances or energies such as noise, heat or light. These are some of the environmental pollutions. Pollution is the addition of any substance or form of energy, sound and radioactivities to the environment at a rate faster environment can accommodate it. ठीक है, तो environmental pollution का मीन्स होता है जितने भी एटमोस्फेयर में पोल्यूटेंट्स हैं, हार्मफुल गैसेस हैं जो एटमोस्फेयर में है, which increases the different harmful pollutants at the atmosphere, so the environmental pollution is increases day by day. Okay, pollutants is any substance. Pollutant means क्या होता है? Any substance causing nuisance or harmful effects or harm to the organisms that they particulate substances may be called as the pollutants. ठीक है, different pollutants that increases the atmospheric environmental pollution. Pollution occurs on the one hand because the natural environment do know how to decompose the unnaturally generated elements. ठीक है, जो unnaturally generated elements हैं, they become increases at the atmosphere. The environmental pollution is to be increases day by day. Okay, next one is different types of environmental pollution. आप लोगों ने ये 6th 7th क्लास में 4th 5th में भी पढ़ा होगा. ठीक है, different types of environmental pollution are there. First one is the air pollution. Okay, so what do you mean by the air pollution? Air pollution is defined as any contamination of the atmosphere that disturbs the natural composition and the chemistry of the air. ठीक है, तो जो जितने भी जो एयर में जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं, इट इंक्रीजेस द एयर पोल्यूशन. ओके, इट इंक्रीजेस द एयर पोल्यूशन. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, carbon monoxide gases, sulfur gases, these are harmful gases that increases the air pollution. What are the sources of the air pollution? Different sources of air pollution are vehicles और मैन्युफैक्चरिंग एग्जॉस्ट. ठीक है, जो भी व्हीकल्स होते हैं, these increases the air pollution. Next one is forest fire. Forest fire means होता है जंगलों में जो आग लगती है, ठीक है, उससे भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नेक्स्ट वन इज वोल्केनिक इरप्शन.
वॉल्केनिक इरप्शन का मीनिंग होता है जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द एयर पोल्यूशन, ठीक है। The harmful gases is to be increases because of the volcanic eruption, ठीक है। So harmful gases is to be increases. Next one is dry soil erosion. Soil erosion, it is also increases the harmful gases, which increases the air pollution. Next one is building construction or demolition. Increasing construction, building construction process, it is also increases the air pollution at the atmosphere. Next one is what are the effects of air pollution? Different effects of air pollution are, first one is increased smoke. Smoke जो increase हो रही है, smoke plus fog से it is increases the air pollution. Next one is what are the effects of air pollution? Next one is higher rain acidity. हायर रेन एसिडिटी का मीन्स होता है जितनी भी एसिड रेन होती है। एसिड रेन का व्हाट डू यू मीन बाय एसिड रेन? द रेन विच इज एसिडिक, दैट इज नोन एज एसिड रेन। हार्मफुल गैसेस इज टू बी एट द water vapors, ठीक है। when the harmful gases is mixed in the water vapors and they evaporate, then after that the rain is acidic, okay, that is known as the acid rain. तो higher acid rain acidity, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इफेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन, ठीक है। जो रेन होती है वो एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक किस केस में होती है? जो वाटर वेपर्स के साथ में हार्मफुल गैसेस क्या होती हैं? इवेपोरेट होती हैं एटमॉस्फेयर में, सो इट इंक्रीजेस द एसिडिक form of the air. Next one is crop depreciation from inadequate oxygen, ठीक है। क्रॉप डेप्लीशिएशन फ्रॉम इनएडिक्वेट ऑक्सीजन, प्रॉपर तरीके से जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है क्रॉप प्रोडक्शन को, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज हायर रेट्स ऑफ अस्थमा। जितनी भी अस्थमा की प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, हायर रेट्स ऑफ अस्थमा। Next one is global warming is also related to increase air pollution. जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इंक्रीज करती है किसको? एयर पोल्यूशन को, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मींस, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबल वार्मिंग? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजेस, दैट इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजेस, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। The carbon dioxide gases increases, the global warming is increases, okay. The higher temperature of atmosphere, it means the global warming. Next one is water pollution. What do you mean by the water pollution? The water pollution इन्वॉल्व्स एनी कंटेंटेड वाटर, ठीक है। जो भी वाटर पोल्यूशन में, वाटर में जितने भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं, दैट इज नोन एज द वाटर पोल्यूशन। फॉर एग्जांपल जो भी रिवर्स होती हैं, जो भी लेक्स होते हैं, ठीक है, जो भी ओशियंस होते हैं, उन सभी में इम्प्योरिटीज जो होती है दैट इंक्रीजेस द वाटर पोल्यूशन, वो इंक्रीज करती है वाटर पोल्यूशन को, ठीक है। जैसे रिवर्स में, लेक्स में, ठीक है, जो भी वाटर कंटेमिनेटेड होते हैं, वाटर की जो क्वालिटी होती है, वाटर की जो इम्प्योरिटीज होती है, दैट इज नोन एज द वाटर पोल्यूशन, ठीक है। रिवर्स में हार्मफुल जो सब्सटेंसेस को रिलीज किया जाता है, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? व्हाट कॉजेज कौन से हैं वाटर पोल्यूशन के? फर्स्ट वन इज इंक्रीज सेडिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन का मीनिंग क्या होता है? जो मिट्टी होती है उसका कटाव, एक हिंदी वर्ड होता है मिट्टी का कटाव, मींस अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो भी
न्यूट्रिएंट्स वाला होता है, अपर लेयर जो क्रस्ट लेयर होती है सॉइल की, इट्स फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इंक्रीजेस द सॉइल इरोजन। ओके, उसी को हम सॉइल इरोजन प्रोसेस बोलते हैं। जो मिट्टी का कटाव होता है, जो अपर लेयर होती है अर्थ की, इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कैसे मूवमेंट होता है? बिकॉज ऑफ फ्लड। ठीक है, जब बाढ़ आती है उससे भी बिकॉज ऑफ फ्लड द सॉइल इरोजन इज टू बी पॉसिबल। ठीक है, उस टाइम पे भी सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम होती है इट इज टू बी इंक्रीजेस। नेक्स्ट वन इज जो डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस होती है। डिफॉरेस्टेशन का मीन्स क्या होता है? जब आप पेड़ों को काट देते हैं, ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, जब पेड़ कट जाते हैं तो उससे क्या होता है? अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो होती है वो फ्लो हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो दिस इज ऑल्सो द मेन रीजन ऑफ द सॉइल इरोजन। नेक्स्ट वन इज improper waste disposal and littering। improper waste disposal and littering का मीन्स क्या होता है? जो waste disposals होते हैं, waste जो मटेरियल होते हैं from one place to another place, lynching of the soil pollution into the water suppliers, उसके बाद organic material decay in the water supplies। ठीक है, जो भी डेड बॉडीज को फ्लो कर दिया जाता है, जो भी सीवेज जो सिस्टम होता है, जैसे रेजिडेंशियल जो सीवेज होता है वो वाटर बॉडीज में जाकर के मिल जाता है। इट ऑल्सो जो वाटर पोल्यूशन इंक्रीजेस द वाटर पोल्यूशन। जो वाटर बॉडीज में डेड बॉडीज को फ्लो किया जाता है, या फिर रिलीजियस जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जो फ्लो कर देते हैं वेस्ट मटेरियल को फ्लो कर दिया जाता है। फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल होता है इट ऑल्सो फ्लो इन द रिवर्स, रिवर्स में वो भी फ्लो किया जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द वाटर पोल्यूशन। जो भी वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को वॉश किया जाता है, इवन एनिमल्स को भी वॉश किया जाता है इन द रिवर्स, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जिनसे वाटर पोल्यूशन को इंक्रीज किया जा रहा है। रिवर्स में जो जितने भी आपकी वेस्ट मटेरियल होता है उसे फ्लो करने से भी इंक्रीज होता है वाटर पोल्यूशन। डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज डिक्रीज क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी क्वालिटी को जब डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जो इफेक्ट है एक वाटर पोल्यूशन का। नेक्स्ट वन इज लोअरिंग वाटर सप्लाई फॉर क्रॉप इरिगेशन। ठीक है, वाटर सप्लाई कम किया जाता है क्रॉप इरिगेशन में। इट ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो द मेन इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। Next one is impacting fish and wildlife population that required water of certain for the survival। ठीक है, जो भी वाइल्ड लाइफ है या फिर जो फिशेज है, फिशेज जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर साइड इफेक्ट पड़ता है जो वाटर पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है रिवर्स में, ओशियंस में एंड लेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सॉइल पोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल पोल्यूशन? तो सॉइल पोल्यूशन का मीन्स क्या होता है? जब सॉइल के अंदर, जब मिट्टी के अंदर पोल्यूशन इंक्रीज होता है, दैट इज नोन एज सॉइल पोल्यूशन। उसी को हम सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉइल के अंदर पोल्यूशन इंक्रीज होता है, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग सॉइल पोल्यूशन? Soil pollution or land pollution is contamination of the soil that prevents natural balance in the land where it is used for the cultivation, habitats or a wild animals। ठीक है, जो भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए सॉइल यूज किया जाता है या फिर क्रॉप प्रोडक्शन के जो लिए जो सॉइल यूज किया जा रहा है, इट इज पोल्यूटेड। ठीक है, तो हाउ इट इज टू बी पोल्यूटेड, किस तरीके से पोल्यूटेड होता है? ठीक है, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ सॉइल पोल्यूशन? तो सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्या है? हैजार्डस वेस्ट एंड सीवेज स्पेलेज। ठीक है, जो भी वेस्टेज मटेरियल होता है जैसे पॉलिथीन बैग्स वगैरह होते हैं, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं सॉइल के अंदर, इट इंक्रीजेस द सॉइल पोल्यूशन। सीवेज स्पिल्स जो होते हैं, जो सीवेज सिस्टम होता है उससे भी सॉइल पोल्यूट होता है। ठीक है, नॉन सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस such as heavy use of inorganic pesticides। जितने भी inorganic pesticides होते हैं, insecticides होते हैं, वेडिसाइड्स जो होते हैं, जो क्रॉप प्रोटेक्शन में यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो इनसे भी जो सॉइल पोल्यूशन है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन इज हाउस होल्ड डंपिंग एंड लिटरिंग। हाउस होल्ड जो डंपिंग होती है, ठीक है, जैसे जो भी आपके घरों से जो वेस्टेज निकलता है उसे आप डंप कर देते हैं, ठीक है, इट ऑल
cutting down of the trees, it also increases the soil pollution. So these are having some of the sources of soil pollution. जैसे for example, देखिए household dumping, it also increases the soil pollution. Different जो irrigation process होती है, pesticides जो use किए जाते हैं, different pesticides are using, तो different pesticides use किए जाते हैं, it also increases the soil pollution. ठीक है, वो भी soil pollution को increase करते हैं. Different जो also increases the soil pollution, वो भी आपके soil pollution को increase कर रहे हैं. Next one is effect of the soil pollution. Soil pollution के which are the effects of the soil pollution. ठीक है, फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. सॉइल पोल्यूशन से जितनी भी वाइल्ड लाइफ होती है ये क्या हो रही है, लॉस हो रही है. नेक्स्ट वन इज पुअर ग्रोथ एंड रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड. क्रॉप प्रोडक्शन जो भी होता है जैसे व्हीट, राइस वगैरह, इनका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, पुअर हो रहा है. पुअर ग्रोथ एंड रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड्स. नेक्स्ट आता है वाटर एंड विजुअल पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन. soil erosion process, it also increases because of the soil erosion, soil pollution. Next one is desertification. These are the effects of the soil pollution. ठीक है, some are the effects of the soil pollution are. Next one is noise pollution. What do you mean by noise pollution? The noise pollution refers to the undesirable levels of the noises caused by the human beings. ठीक है, तो undesirable जितनी भी noises होती हैं because caused by the human that disrupts the standards of the living in the affected area. Some noise pollution be temporary while some sources are at permanent sources of the noise pollution. ठीक है, जो शोर शराबा होता है उससे जो noise pollution फैलता है that is known as noise pollution. What are the sources of noise pollution? Different are the sources of noise pollution. First one is traffic. जितनी भी traffics होती हैं it also increases the soil pollution. Next one is airports. It also increases the soil pollution. Next one is railroads. It also increases the soil pollution. So what are the effect of the soil pollution? कौन कौन से effects होते हैं आपके noise pollution के? फर्स्ट वन इज हियरिंग लॉस. जो सुनने की क्षमता होती है वो लॉस हो जाती है. वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस होता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द नॉइज पोल्यूशन. नेक्स्ट वन इज अ जनरल डिग्रेडेशन ऑफ लाइफ स्टाइल, इट इज ऑल्सो इंक्रीजेस द नॉइज पोल्यूशन. ठीक है, जो भी ट्रैफिक होता है, ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनसे भी नॉइज होता है. ठीक है, जितने लाउड स्पीकर्स होते हैं या फिर होम गैजेट्स होते हैं, घरों में जो गैजेट्स का यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल जो भी आप एसी का यूज करते हैं या फिर आप कूलर का यूज करते हैं या फिर आप वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं या फिर आप टीवी का यूज करते हैं. ठीक है, या फिर आप और अदर गैजेट्स का यूज करते हैं, जैसे आप मिक्सर ग्राइंडर का यूज करते हैं, तो दीज आर द सोर्सेज दैट इंक्रीजेस द नॉइज पोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन? Radioactive pollution is rare but extremely detrimental and even deadly where occurs because of its intensity and the difficulty of revising damages. There is a government regulation to control radioactive pollution. तो radioactive waves जो निकल के आती हैं, radioactive pollution उसी से increase होता है. What are the sources of radioactive pollution? ठीक है, what are the sources? So first source of radioactive pollution is nuclear power plants. ठीक है, nuclear power plants, it is a main sources of radioactive pollution, accidents or leakage. Second one is improper nuclear wastage. जो improper nuclear wastage होता है, it also increases the radioactive pollution. Next pollution is यूरेनियम मिलियम्स ऑपरेशंस. जो माइनिंग होती है, ठीक है, जो माइनिंग प्रोसेस होती है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. माइनिंग प्रोसेस जो होती है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन.
ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक है, तो कौन कौन से सोर्सेस मैंने बताए हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट्स। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं इट ऑल्सो इंक्रीजेस द radioactive pollution. Second one is improper nuclear wastage. ठीक है, improper जो nuclear wastage होते हैं it also increases the radioactive pollution. Next one is uranium mining operation. जो भी mining operations होते हैं it also increases the radioactive pollution. Effects of रेडिएशन पॉल्यूशन, जो इफेक्ट्स होते हैं आपके रेडिएशन पॉल्यूशन के वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स। बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव वेव। जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है या फिर एक्सरे होता है इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेडियो। हेलो, यस। बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं बच्चों के अंदर, जो बेबी बर्थ करता है उस टाइम पे जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से ही होते हैं। कैंसर वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। नेक्स्ट वन आता है आपका सैनिटाइजेशन, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर द ह्यूमन एंड ह्यूमन बॉडीज and wildlife population, it also increases the radiation pollution and radioactive pollution. Next one is it can also sanitize the soil and contribution for the water air pollutants. ठीक है, तो रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन होता है ये इंक्रीज करता है सॉइल पोल्यूशन को भी, वाटर पोल्यूशन को भी और एयर पोल्यूशन को। नेक्स्ट वन इज थर्मल पोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय द थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, तो थर्मल पोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। थर्मल पोल्यूशन इज एक्सेस हीट, एक्सेस अमाउंट में जो हीट रिप्रोड्यूस होती है दैट क्रिएट्स अनडिजायरेबल इफेक्ट्स for a long period of time, that is known as the thermal pollution. The earth has a normal thermal cycle, जो अर्थ की एक नॉर्मल थर्मल साइकिल होती है, but excessive temperature increase can be considered a rare type of pollution which is known as the thermal pollution. ठीक है, many types of thermal pollution are confined to areas. ठीक है, many types of thermal pollution increase होते हैं but multiple sources of the wild impacts over the generated geographical areas. What are the sources of the thermal pollution? कौन कौन से sources हैं thermal pollution के। First one is thermal power plants that is used to reproduce the electricity. ठीक है, next one is urban solar. Next one is air pollution particles that trap heat. Next one is deforestation. Next one is loss of temperature, modern water supply. So these are the sources of thermal pollution. Thermal pollution के ये sources हैं। ठीक है, जैसे जो thermal power plants लगाए जाते हैं water के अंदर because to reproduce the electricity. So these are the sources of thermal pollution. Next are what are the effects of the thermal pollution? Thermal pollution की कुछ effects हैं। As temperature increases, जैसे temperature increase होता है, mild climatic changes are observed. Next one is wildlife population are unable to recover from shift changes. So these are the effects of the thermal pollution. नेक्स्ट वन इज लाइट पोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय द लाइट पोल्यूशन। तो लाइटिंग के थ्रू पोल्यूशन जो इंक्रीज होता है दैट इज नोन एज द लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन इज द ओवर elimination of an area that is considered it is unwanted consequences of outdoor lighting and include such as light, जो भी लाइटिंग होती है, ठीक है, सिटीज में अर्बन एरियाज में जो लाइटिंग होती है इट इंक्रीजेस द लाइट पोल्यूशन। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट पोल्यूशन। लार्ज सिटीज में, लार्ज सिटीज जो होती हैं इट इंक्रीजेस द लाइट पोल्यूशन। ठीक है, जो एडवर्टाइजिंग प्रोसेस होती है इट ऑल्सो इंक्रीजेस द लाइट पोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज नाइट टाइम स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड अदर नाइट टाइम एंटरटेनमेंट इवेंट्स that increases the light pollution, जो कि इंक्रीज करते हैं लाइट पोल्यूशन को।
Effects of the light pollution. What are the effects of the light pollution? Makes it impossible to see stars. लाइट पोल्यूशन की वजह से स्टार्स विजिबल नहीं होते हैं इजीली. नेक्स्ट वन इज इंटरफियरिंग विथ observation and personal enjoyment, degrade the quality of the life for the residents. So these are the effects of the light pollution. Personal pollution. What are the effects of the personal pollution and what do you mean by the personal pollution? Personal pollution का means क्या होता है? Personal pollution is the contamination of the one body and lifestyle determine action. It is a kinds of pollution. ये एक तरीके का kind of pollution है that we create as human like, जैसे cigarettes, burning of plastics, जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग जो करते हैं, टोबैको जो करते हैं, टोबैको जो चबाते हैं, एंड बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, इट इज ऑल्सो द मेन रीजन ऑफ द पर्सनल पोल्यूशन. पर्सनल पोल्यूशन के कुछ मेन रीजंस हैं. कॉजेज ऑफ पर्सनल पोल्यूशन: एक्सेसिव स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स अब्यूजेस, इमोशनल और फिजिकल जो अब्यूजेस होते हैं, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द पर्सनल पोल्यूशन. Poor life conditions and habitats is also increases the personal pollution. Poor personal attitudes, it also increases the personal pollution. Adverse effect of the personal pollution. What are the adverse effect of personal pollution? Environmental degradation. This is the main effects of the personal pollution. Environmental degradation. Next one is human health. पर्सनल पोल्यूशन है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, जो ह्यूमन हेल्थ होती है वो इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ पर्सनल पोल्यूशन की वजह से. ठीक है, तो पर्सनल पोल्यूशन में मैंने बताया था अभी आपको कि ग्लोबल वार्मिंग, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द ग्लोबल वार्मिंग. द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इंक्रीजेस at the atmosphere, so global warming is increases, the atmosphere temperature is increases. Ozone layer depletion. Ozone layer means depletion means the layer of atmosphere, it also increases because of the personal pollution. Chlorofluorocarbon is increases, ठीक है, by the refrigerator, by the ACs, so it increases the personal pollution. Infertile lands, the land is to be infertile, जो land होता है, ठीक है, soil होता है, it is infertile because of the personal pollution. So these are the side effects of the personal pollution. Hello, any problem, any doubt? Yes बेटा बताइए. Adverse effects of the pollution मैंने भी आपको बताया है कि what are the adverse effect of the pollution. तो first is environmental degradation. जो environment है वो degrade हो रहा है because of the personal pollution. Environment is the first for increasing in the pollution, weathering in the air or water. The increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Next one is human health. The decrease in the quality of air leads to survival respiratory problem, including asthma and lungs cancer. It also increases the lungs cancer problems and asthma problem because of the personal pollution. Chest pain, ठीक है, जो चेस्ट पेन जैसी रेस्पिरेटरी जो डिजीज होती है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू द ह्यूमन हेल्थ एंड ड्यू टू द पर्सनल पोल्यूशन. तो आपका जो पोल्यूशन का टॉपिक है, इट इज टू बी कंप्लीटेड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन मैंने अभी आपको पढ़ा दिया. व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, वो भी कंप्लीट हो गया है कि कॉजेज क्या है पोल्यूशन के, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या है, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन क्या है. हेलो हेलो, एनी डाउट? हेलो, यस बेटा, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? हेलो हेलो, यस कोमल, Yes, ma'am. एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. यस मोहन मेहता, आप क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? बहुत काफी लंबे टाइम के बाद आपने क्लास ज्वाइन की है. मोहन मेहता, व्हाई यू डोंट अटेंड द क्लास बेटा?
कोई भी रिस्पॉन्स करना सीखिए, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। और प्लीज आप लोग फीस डिपॉजिट कर दीजिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये आपके मैम ने ऑर्डर दिए हैं कि अगर आप फीस डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज सबमिट योर फीस ऑफ मैम जिस थर्ड सेमेस्टर तक सेमेस्टर। की फीस भर रखी है मैम उसका रिजल्ट तो दे दो। नहीं बेटा, आपका जब थर्ड सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट हो जाएगी उसके बाद ही आपको आपका जो रिजल्ट है वो आएगा, ठीक है। अब आप लोग प्लीज डिपॉजिट कर दीजिए फीस, ठीक है। मैम थर्ड थर्ड सेमेस्टर, सेमेस्टर की? यस, तम थर्ड सेमेस्टर की जो बच्चा डिपॉजिट करेगा उसी का रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैम ओके, ऐसा क्यों मैम, जब मैम फर्स्ट मेरे ईयर को की मैम पूरी ने फीस बोला भर है, रखी है। आप मैम ने मेरे को बोला है, आपको मैं बता चुकी हूँ, प्लीज आप लोग अपनी फीस डिपॉजिट कर दीजिए और अपना रिजल्ट आपका आ जाएगा, प्लीज बेटा, है ना। ओके, नाउ क्लास इज ओवर, क्लास इज ओवर। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम है आप लोगों को कि क्वेश्चंस में या फिर एयर पोल्यूशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, रिपीट कर देती हूँ मैं आपको। आपका एयर पोल्यूशन का टॉपिक था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन में फर्स्ट है एयर पोल्यूशन, नेक्स्ट है आपका वाटर पोल्यूशन, नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन, पर्सनल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है। दीज आर द नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड लास्ट लाइट पोल्यूशन एंड पर्सनल पोल्यूशन। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए। एनी डाउट? यस बेटा, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नाउ क्लास इज ओवर, आई विल टेक योर क्लास ऑन टुमारो। ओके बेटा, I will take your class on tomorrow. Next topic. Okay, your class is over.